Welcome to Internet Programming Tutorial Series. Today we discuss the another or second topic of the JSON. Last time we discussed about the introduction part and how they're working on there. But most of the students they are confused about the working on there. So today we discuss some uh, overlook about the what are the confusion on their students, and then we discuss about the how we return the JSON. Okay, so and then again we the JSONs, what are the data types, and then how we take that the output of the JSON in normal text editors. That is the whole thing we have to discuss today. So before that, you subscribe my channel and you share my channel, please. So let us start with the topic. So most of the students they having a problem regarding to that the MySQL to take how the data into the browser or dynamic page. So normally the different programming language we can take this one, but in JSON how they possible. Okay. So what happened that MySQL database they store the data in a table format. So this is suppose a table, and that table whatever the data and the columns they are, we are converted into the JSON file format. This is a JSON file format, the JSON normal text file. Okay, and that the JSON normal text file, which is nothing as your JSON format, and that JSON format they know that your every programming language or they are supported to all the programming language. Okay, again I repeat. Okay, I want to suppose that the data to access very quickly through that the JSON. So what we do that the MySQL database they store the table, and that the table we have to convert into the JSON format. Okay, so here already I draw the diagram according to. Okay, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया और टेबल को मैंने इस JSON नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट किया और उसी को हम JSON फॉर्मेट बोलेंगे, और ये JSON फॉर्मेट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. तो they how they convert that the table into JSON file. Okay, so that regarding we have the one uh, function is there, that name is the JSON encode underscore JSON encode. So that JSON encode what the table which is to be converted into the JSON file. Okay, the another way suppose I want to create a JSON file instead of that the MySQL database or whatever the database. So that time that all the platform they send the request to the JSON format, and that JSON format they use a JSON decode function, and through that we can save all the file into a JSON file. Yes, that what the JSON file. So these are the two functions are used on there. That is the first is what the JSON encode, and second is the JSON decode. Okay, so why we use this one? Because I want to that a data into the normal text file, and that the text file we are used for conversion or sending the request from client to server or server to client. Why? Because that the process which is a very quick, so that's why we are use a JSON normal text file on the web system architecture or the web application. That is the main use of this one. ओके, तो ये सारा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स को, तो ये मैंने अभी कन्वर्ट कर दिया कि जेसॉन एनकोड जेसॉन डीकोड क्या होते हैं. ओके, तो MySQL का जो डेटा है वो डेटा मैं निकालता हूँ एक नॉर्मल फाइल में, और नॉर्मल फाइल सबको समझ में आती है. नॉर्मल फाइल जेसॉन फाइल, तो जेसॉन फाइल सबको समझ में आती है. तो अगर सेकंड टाइम अगर क्लाइंट को डेटाबेस से स्टोर नहीं करना है, एक नॉर्मल जेसॉन फाइल में स्टोर करना है, तो उसके लिए जेसॉन डीकोड नाम का फंक्शन है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं. दैट इज अ थिंग. ओके, दैट्स ऑल. सो द क्वेश्चन इज व्हाट राइट नाउ. सो हाउ वी write a JSON format or JSON file. So regarding what are the data types, what we uses on there, how we write on there. Okay, in text editor. So that is the whole thing we have to discuss today. So first thing we discuss about the some overlook or some light introduction on here. Okay,
So JSON is lightweight format storing and transmitting the data, already I told. So JSON language is independent format, of course. The JSON is a text written in JavaScript and object notation. So that is the thing today we discuss on there कि JSON एक text है और उसको रिटर्न विद जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रोटेशन से कैसे लिखते हैं, अभी आज हमको ये देखना है. एंड देन जेसॉन वी कांट टेकन द कमेंट. ओके, तो यहाँ पे सजेशंस और कमेंट्स हम जेसॉन में नहीं ले सकते हैं. दैट इज़ अ ड्रॉबैक. एंड अनदर ड्रॉबैक इज़ व्हाट, जेसॉन में मैं ऑडियो वीडियो और इमेजेस सेंड भी नहीं कर सकता हूँ. सिर्फ डेटा यहाँ से वहाँ से यहाँ टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करके दे सकता हूँ. दैट इज़ द थिंग. तो यहाँ पे नॉर्मल XML में मैं कर सकता था कि XML में मैं कमेंट भी दे सकता हूँ, XML में वीडियो ऑडियो सब कुछ दे सकता हूँ. तो हम XML में कैसे लिखते हैं और JSON में कैसे लिखते हैं वो पहले देखते हैं. कि ये देखो, जैसे JSON की फाइल है, अगर मुझे JSON में एक एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी तो फर्स्ट नेम और जॉन, लास्ट नेम और उसका डो नाम लिखा है. तो ये हो गया आपका की और ये हो गया आपका वैल्यू. तो की और वैल्यू से मुझे स्टोर करना था. और की और वैल्यू क्या होती, रिगार्डिंग द ऑलरेडी आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर. ओके, तो ये मेरा इस तरह से स्टोर कर दिया. ये ऑब्जेक्ट है आपका एम्प्लॉय और उस ऑब्जेक्ट के बीच में मैंने की और वैल्यू सारे स्टोर करके रखी है वन बाय वन. ओके, तो ये इस तरह से मैं जेसॉन में फाइल बनाऊंगा. और यही फाइल अगर मैं XML में लिखता हूँ तो कैसे लिखूँगा, ये एम्प्लॉय है आपका, ये वाला एम्प्लॉय यहाँ पे मैंने ओपन किया है और नेक्स्ट वाले स्लाइड में यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको एम्प्लॉयज़ को क्लोज कर दिया. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयज़ को ओपन किया और नेक्स्ट वाले स्लाइड पे यहाँ पे क्लोज कर दिया. तो इसके बीच में एम्प्लॉय है मेरे, जैसे फर्स्ट वाला एम्प्लॉय था उसका फर्स्ट नेम जॉन था और लास्ट नेम उसका डोए था. तो ये सारा कॉम्प्लिकेशन था इसमें कि XML लिखने में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है. हर एक के लिए टैग बनाना पड़ता है, फिर टैग को समझाना पड़ता है कि किसके अंडर क्या है, हिरार्चिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, डॉम बनाना पड़ता है. तो दैट इज़ द थिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट इन द XML. So instead of that, the JSON, we just only put the first name, last name on there. Okay, तो अभी मैं सारी फाइल जो है वो JSON की कैसे बनाऊंगा. तो डिफरेंस तो आपको मालूम ही पड़ा कि ऐसा ऐसा है. JSON में खाली की और वैल्यू डालते हैं, बट इन XML में उसका टैग वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है. तो थर्ड थिंग क्या है आपकी, कि जो भी आपकी फाइल है, ओके, जैसे कि क्लाइंट के थ्रू आएगी. ओके, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अभी क्लाइंट, तो ये हो गए आपके सारे तीनों, और यहाँ पे आएंगी. ओके, यहाँ से यहाँ पे आएंगी और JSON फाइल में आएंगी. यहाँ से कहीं भी जा सकती है. तो यहाँ पे अगर आपको कन्वर्जन करना है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वो फाइल रीड कर सकते हैं और उसके की और वैल्यू आप रीड कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे क्या है कि थर्ड डिफरेंस क्या था कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं और JSON का ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखते हैं. ये क्यों लगने वाला है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आएगा आपका यहाँ पे, ओके, तो वो किस में होगा, जावास्क्रिप्ट में होगा. क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म में जावास्क्रिप्ट चलती है और वही जावास्क्रिप्ट मैं एजाक्स के थ्रू रीड कर लूँगा यहाँ पे. ओके, ये जावास्क्रिप्ट किस में आएगी, इस एजाक्स में आएगी और एजाक्स के थ्रू और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको कन्वर्ट करूँगा JSON ऑब्जेक्ट में. और JSON ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग एज व्हाट, कन्वर्ट इनटू द JSON फाइल में. तो इस तरह से ये प्रोसेस होने वाला है. फिर से मैं बोल देता हूँ आपको अच्छी तरह से यहाँ पे. ओके, क्या होगा कि नॉर्मली आपकी जो रिक्वेस्ट है ब्राउज़र की, वो जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट रहेगी. फिर वो एजाक्स इंजन में जाएगी. यहाँ पे एजाक्स इंजन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. विदाउट एजाक्स आप उस JSON फॉर्मेट में फाइल नहीं बना सकते हैं. तो चलो, ब्राउज़र में जो भी रिक्वेस्ट था वो एजाक्स इंजन में चली गई, मतलब जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट. अभी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था और उस जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट को मैंने कन्वर्ट किया
किसमें? एक जेसॉन ऑब्जेक्ट में किया। किसमें? जेसॉन ऑब्जेक्ट में। और जेसॉन ऑब्जेक्ट में करने के बाद मेरी यहाँ पे एक जेसॉन फाइल बन गई जो कि नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। ओके, और इस तरह से मैं ये फाइल बना दूंगा, डेटाबेस में नहीं डालूंगा। ओके, तो इसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और जेसॉन का ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं और पहचानते कैसे। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट तो हमने देखा था ऑलरेडी, चलो फिर और एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो कहाँ पे? यस, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे ओके, नेम एंड दैट एज। तो नेम में डबल इंडोड कॉमा नहीं है, जो उसका वैल्यू ये वाला की और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? वो डबल इनवर्ट कॉमा में है। यस, एज। अभी एज जो है वो नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पे डबल इनवर्ट कॉमा नहीं दे सकते। ओके, अगर सेम थिंग मैं यहाँ पे स्पेस दे कर लिखता सरीन स्पेस देवरे, तो मुझे नेम पे डबल इनवर्ट कॉमा देना पड़ता। दैट इज़ द थिंग। ओके, बट पे यहाँ पे ऐसे कुछ बात ही नहीं है। तो नॉर्मली स्ट्रिंग जो है वो डबल इनवर्ट कॉमा में दिखाऊंगा। ओके, और नंबर जो है विदाउट दिखाऊंगा डबल इंडेड कॉमा में। तो जेसॉन ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि वही सेम, अगर मैंने जेसॉन वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिया जावास्क्रिप्ट का, तो मुझे वो क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे डबल इंडेड कॉमा पे लेना पड़ रहा है, की में भी और वैल्यू में भी। की में और वैल्यू, अभी वैल्यू क्या है? यहाँ पे नंबर है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हम किस तरह से लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में, हमें देखना है। ओके, तो ये डिफरेंस तो मालूम पड़ गया कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं और जेसन ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, और उसको एजेक्स इंजन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात की बात है। ओके, मतलब कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और जेसन ऑब्जेक्ट को इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए कौन से फंक्शंस हम यूज़ करने वाले हैं, ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे। अभी हम फिलहाल क्या देखने वाले हैं कि इस जेसन ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। अगर नॉर्मल टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट्स हैं, बुलियंस हैं, वो कैसे लिखना पड़ेगा हमें, ये हमें देखना है। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में देखेंगे हम। ओके, तो इसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट की यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखना है जेसॉन डेटा टाइप स्ट्रिंग में। ओके, और उसका आउटपुट में कैसे दिखाते हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिटर में जाना पड़ेगा, एडिटर में एंड राइटर में जाना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फ़ोटो जो है वो निकाल, वीडियो जो है वो निकाल देता हूँ और नॉर्मल एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे डाउनलोड्स टेस्ट में देता हूँ। चलो यहाँ पे क्या दूंगा मैं? टेस्ट जेसॉन देखता हूँ और जेसॉन फर्स्ट लिखता हूँ, जेसॉन फर्स्ट डॉट HTML सेव किया। ओके, और टेम्पलेट लिया HTML का 5 का, और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। ओके, यू नो द स्क्रिप्ट वेरी वेल। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लिया और उसके नीचे मैं अभी लिखता हूँ। ओके, अभी ये स्क्रिप्ट सपोज मैं यहाँ पे नीचे भी लिख सकता हूँ, बॉडी के बीच में, यू नो वेरी वेल। तो मैं ये स्क्रिप्ट जो है यहाँ से कट करता हूँ, पहले कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको कट किया और बॉडी के बीच में डाल दिया। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी मुझे जेसॉन का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करना पड़ता था? ओपन करली ब्रेसेस किया मैंने। ओके, और उसके बाद क्लोज करली ब्रेसेस मैंने लिखा, उसके बाद मुझे सेमी कॉलन यहाँ पे देना पड़ता है। ओके, सेमी कॉलन लिया मतलब क्या? राइट नाउ आई डू व्हाट जेसॉन ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन निकाल देता हूँ, ओके, तो राइट नाउ व्हाट वी डू, दैट इज नथिंग एज योर
वी आर डूइंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। चलो मैं एक वैल्यू बाय एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मैं की लेता हूँ, उसका नाम है नेम, ओके, इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, कोलन, उस नेम की जो वैल्यू रहेगा और की का जो वैल्यू रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पे नेम। सो स्ट्रिंग जब रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा मुझे। नेम लिखा मैंने सपोज यहाँ पे सरीन, ओके, यहाँ पे सरीन। और इस ऑब्जेक्ट को और उस की वैल्यू अगर मुझे दिखानी है इस जावास्क्रिप्ट के बीच में, तो मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा, अलर्ट नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को कॉल करके उसका की मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। उसका की क्या है, नेम, कंप्लीट, एंड देन सेमीकोलन। उसको मैंने सेव किया, ओके, और उसको रन करता हूँ। चलो, तो रन जैसे मैंने किया तो अलर्ट मैसेज मुझे आ गया, ओके। मैं प्रीव्यू में जाता हूँ और अगर इंस्टेड ऑफ दैट मुझे यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की में भी लगाना पड़ेगा और वैल्यू पे भी लगाना पड़ेगा, एंड एज वेल एज मुझे एट द एंड ऑफ दैट कर्ली ब्रेसेस वी पुट अगेन अ सेमी कॉलन ऑन देयर, ओके। यहाँ पे एंड में भी सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा और उसको उसी तरह से कॉल करना पड़ेगा जैसे जावास्क्रिप्ट ने कॉल किया था, मतलब डिस्प्ले करने के लिए, ओके। तो अलर्ट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, जब उसको रन करता हूँ, चलो देखते हैं हम लोग, ओके, वही आउटपुट आपको आया। चलो मैं इसको है ना ब्राउज़र के ऊपर भी दिखा सकता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, ओके। तो ब्राउज़र पे अलर्ट मैसेज आया, ओके, मैंने पिन किया, ओके। इस तरह से मैं दिखाऊंगा इसको। दैट इज़ ओनली व्हाट अबाउट दी स्ट्रिंग वैल्यू। अगर मुझे वही वैल्यू अगर मुझे बुलियन में दिखानी है, या सॉरी नंबर में दिखानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एज लूँगा, नंबर, ओके, कोलन, उसका एज है 23। अभी आप बोलोगे सर कि आपने डबल स्ट्रिंग नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि नंबर है इसको मैंने नहीं ले सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले की लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू, और जो पहले वाली की लिखी है उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है, ओके। देन विल रन। मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। चलो, सरीन आ गया यहाँ पे, ओके। तो मैंने सिर्फ सरीन ही यहाँ पे डिस्प्ले किया था, उसी तरह से मैं अभी मुझे एज भी दिखाना है, फिर अलर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अलर्ट, फिर उसके बाद ओबीजे डॉट, ओके, डॉट एज मैं लिखूँगा और उसको ब्रैकेट कंप्लीट करके सेमी कॉलन दे दूँगा। सेव किया, फिर ब्राउज़र में आया, फिर ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया, ओके, सरीन, एंड देन एज मेरे को मिल गया अभी यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया खाली नंबर के रिगार्डिंग। और इस तरह से मेरे पास रहेगा बुलियन वैल्यू भी रहेगा। तो बुलियन मुझे दिखाना है तो किसमें, इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में नहीं दिखाना है मुझे, कहाँ पे दिखाना है, जेसन ऑब्जेक्ट के बीच में दिखाना है। तो उसके रिगार्डिंग फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉमा करूँगा पहले, देन यहाँ पे की, सॉरी नॉट की वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि सैलरी, ओके, कोलन, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, कोलन, यहाँ पे ट्रू। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, दैट इज़ आई टेक। उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, फिर उसकी सैलरी क्या है, उसके रिगार्डिंग मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। तो उसके भी रिगार्डिंग की और वैल्यू क्या क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे, ये फॉर्मेट हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो सैलरी मुझे देखना है तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर अलर्ट में आके उस ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ओके, डॉट उसका सैलरी की जो बुलियन वैल्यू है वो चेक करनी पड़ेगी। उसको मैंने सेव किया, फिर उसे ब्राउज़र के ऊपर आया, मैंने उसको रिफ़्रेश किया, सॉरी यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया, मैंने सेमी कॉलन लिख दिया, मैंने उसको फिर से सेव किया, फिर ब्राउज़र पे आया,
इसको रिफ्रेश किया, सबसे पहला नाम है सलीम, फिर उसका एज है 23 और नेक्स्ट है उसकी सैलरी ट्रू। यस, देन मैंने क्या किया, अब भी मुझे क्या करना है, उस जावास्क्रिप्ट सॉरी जेसन ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट लेना है, जेसन का ही ऑब्जेक्ट लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में ऑब्जेक्ट। तो यस, तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा, सपोज ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा इंफॉर्मेशन, ओके, देन कोलन, मतलब की और उसकी वैल्यू। अभी वैल्यू किस में देंगे, उस ऑब्जेक्ट की करली ब्रेसेस में देंगे। यस, ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखते हैं हम लोग, जेसन ऑब्जेक्ट, ओके, और उसकी जो बीच में वैल्यूज है, की और वैल्यूज, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, जैसे कि लास्ट नेम, लास्ट नेम, ओके, कोलन, यहाँ पे उसका नाम है लास्ट नेम सपोज देवरे, ओके, देन कॉमा, देन व्हाट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसका एड्रेस लिखेंगे हम यहाँ पे, कुछ भी एड्रेस रह सकता है इसका, देन कोलन मैं लिखता हूँ यहाँ पे खारगर। यस, इस तरह से उसका क्या रहेगा, ये इंफॉर्मेशन रहेगा। मैंने उसको सेव किया। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि सर इसको हम कैसे दिखाएंगे। यस, तो ये दिखाऊंगा मतलब कि यहाँ पे इस लास्ट नेम और एड्रेस की वैल्यू कैसे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये सब रिमूव तो कर दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट का नाम, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम, हियरार्चिकल स्ट्रक्चर से जाएंगे, डॉट, यहाँ पे लास्ट नेम, ओके, और इसको कंप्लीट किया एंड देन सेमी कॉलन। तो मेरी अलर्ट में क्या होना चाहिए, देवरे दिखना चाहिए, ओके। मैंने उसको सेव किया और फिर से मैं इस ब्राउज़र पे आया और उसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, मतलब कुछ तो गलत हो गया मेरे से, ओके, देखते हैं। ओके, ओके, तो ट्रू के बाद मेरा कॉमा रहेगा यहाँ पे। चलो सेव किया फिर से और यहाँ पे आया और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। चलो देवरे आउटपुट आ गया। यस, दैट इज़ द थिंग वी हैव टू डू ऑन देयर, ओके। तो नेक्स्ट, फिर इस जेसॉन के ऑब्जेक्ट में एरे कैसे इंसर्ट करेंगे। नॉर्मली इन जावास्क्रिप्ट में एरे इज अ स्क्वायर ब्रैकेट में हम लेते हैं, ओके, बट यहाँ पे कैसे लेंगे हम लोग, ओके। अगेन दैट द की रिगार्डिंग द एरे, मतलब कि एरे में कोई वेरिएबल लूँगा, सपोज मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की ले ली मैंने, ओके, यहाँ पे, और कोलन यहाँ पे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या किया, वहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, मतलब किसकी, एरे की, ऑब्जेक्ट्स की, ओके। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट इंसर्ट होते हैं, ओके, तो यहाँ पे भी सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट होंगे। सपोज मेरा पहला है ऑप्शन क्रिकेट, ओके, देन कॉमा, ओके, उसके बाद क्या रहेगा आपका, सब कोई भी ले सकते हैं आप, फुटबॉल, ओके, उसके बाद टेनिस, कुछ भी स्पोर्ट्स ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं, ओके। मैं लेता हूँ बास्केट बॉल लेता हूँ यहाँ पे, ओके। मैंने उसको सेव किया। अभी आप बोलोगे कि सर इसे कैसे निकालेंगे, तो अभी एरे निकालना है, मतलब क्या, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास फॉर लूप चाहिए, तभी मैं इसको निकाल सकता हूँ, ओके। तो नॉर्मली हम देखेंगे इसके बारे में बाद में कि हम एरे को कैसे निकालेंगे यहाँ से, ओके। तो उसको ये रन होता है क्या, पहले देखते हैं हम लोग कि लास्ट नेम वाला जो है वो रन होता है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि एरे की वैल्यू हमें कैसे निकालनी वहाँ पे। यस, सो दैट रिगार्डिंग वी टेक द एग्जाम्पल, ओके, एंड सपोज पहले रन करके दिखता हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। यस, मतलब ये बराबर लिखा है हमने एरे। अभी एरे की वैल्यू मुझे एक 1 बाय 1 निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर मुझे लेना पड़ेगा, आई लेता हूँ मैं, आई
equal to 0, then a semicolon, then I less than, yes you know very well, less than and equal to लेता हूँ मैं. सपोज उस स्पोर्ट्स एरे का नाम डॉट, सॉरी पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम लेना पड़ेगा, ओ बी जे डॉट स्पोर्ट्स डॉट लेंथ. अभी लेंथ तो उसकी क्या है, वो इस लेंथ नाम के वेरिएबल से आपको मिल जाएगा. ओके, देन वी टॉक व्हाट, सेमीकोलन एंड देन व्हाट, द आई प्लस प्लस, देन complete here, then what, open curly braces and close curly braces, in between that we can display one by one. ओके, अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो वेरिएबल आई को मैं यहाँ पे ऊपर ही डिक्लेयर कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल आई. ओके, एंड देन सेमीकोलन यहाँ पे. उसके बाद ये ओ लिखा है मेरे से, आई थिंक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 0 के सेमीकोलन. तो क्या करना पड़ेगा एग्जैक्टली यहाँ पे, मुझे उस को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना पड़े, सॉरी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, जो कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर रहेगा. जैसे आपने देखा था, कोई सपोज एक असाइनमेंट ऑपरेटर है x प्लस इक्वल टू, मतलब क्या, x इक्वल टू एक्स प्लस. ओके, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर से हम इसको लेंगे. ओके, तो अगर मुझे दिखाना है ये सारे आउटपुट, तो चलो देखते हैं हम लोग. तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक x वेरिएबल लूँगा. ओके, उसको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर लेता हूँ. तो असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे लेना है, उसके रिगार्डिंग स्पेशल मैंने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग लिखा है, आप उस सारी वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो x प्लस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी आपका स्पोर्ट्स का एरे है उसका इंडेक्सिंग वैल्यू कैसे दिखाएंगे हम, ब्रैकेट में आई एंड देन कंप्लीट योर ब्रैकेट. ओके, तो इस तरह से क्या होगा, एक एक वैल्यू आएगी और वो स्टोर होगी आपके x वेरिएबल में. यस, अभी x वेरिएबल में स्टोर होगी मतलब क्या, पहला वाला क्रिकेट, फिर फुटबॉल, फिर बास्केटबॉल, इस तरह से अलर्ट में हमें दिखाना है सब कुछ, सब स्पोर्ट्स के एरे की वैल्यू, सॉरी हाँ स्पोर्ट्स की वैल्यू. ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रेक देता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट चाहिए वो वाला. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस देता हूँ और यहाँ पे HTML का ब्रेक लगा देता हूँ, जो कि समझ में आएगा एक के बाद एक आपको, नहीं तो एक जैसा आएगा आउटपुट, एंड देन सेमीकोलन. ओके, तो सारे आउटपुट अगर मुझे दिखाने हैं इस ब्राउज़र के ऊपर, मतलब आउटपुट मतलब स्पेशली एरे का, स्पोर्ट्स का, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे इस डिव में, और इस डिव में सारे जो भी मेरे ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब क्रिकेट, फिर उसके बाद फुटबॉल, और उसके बाद जो बास्केटबॉल था आपका वो. ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिव को नाम देना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा. नाम है सपोज टेस्ट, ये कर्सर चल नहीं रहा है अभी अच्छी तरह से, तो टेस्ट नाम का ये डिव रहेगा. और उस डिव को हम कैसे रीड करेंगे जावास्क्रिप्ट में, यूजिंग डॉम मेथड से, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. ओके, तो चलो हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉडी में जाता हूँ इसके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ. ओके, और यहाँ पे उस डिव का आईडी क्या रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने टेस्ट रखा है तो आप टेस्ट कुछ भी रख सकते हैं. यहाँ पे टेस्ट, मैंने टेस्ट रख दिया. और अभी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
by id, you know very well, I think so, कैसे क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में सारा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इसका आईडी एक टेस्ट, और उसको मैंने डॉट इनर एचटीएमएल में डिस्प्ले कर दिया, मतलब उसके टैग के बीच में आपको क्या दिखेगा, एक्स की वैल्यू दिखेगी। दैट इज़ द थिंग। एक्स की वैल्यू क्या है, अभी ये 1 बाय 1 आएगी एरे में, किसकी, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। इसको मैंने सेव किया, और ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, डबल इंडेड कॉमा, चलो देखते हैं इसका आउटपुट, पहले देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने इसको अभी ब्राउज़र पे गया, सेव किया, हाँ, इसको रन किया, चलो आया आउटपुट, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे डबल लेस दैन इक्वल टू लिखा था। मैंने फिर से इसको सेव किया, और यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र पे, और उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो चलो वो दिखाई, वो गया अनडिफाइंड, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये आउटपुट आपको आया इस तरह। तो ये था मेरा रिगार्डिंग टू योर JSON, that the data types. I hope you understand those one thing, and uh, please subscribe my channel, and please share my channel. That is, I think so, the chapter number 7, and that is the part number 2 we complete on here. The next part we have to do the JSON parser regarding all these things. Okay, so thank you so much all of you.